moving toward some important bacterial structures, like we will discuss mostly about जिनको आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर आउटसाइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया ज्यादातर वो होंगे, लेकिन अ, अ, एक हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है वो रहता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिमेनिंग ऑर्गेनेली व्हिच आर प्रेजेंट एक्चुअली इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है। और उनका नाम और उस ऑर्गेनेलिस का नाम है ट्रांसपोसन्स। ट्रांसपोसन्स, what are transposons? Transposons are actually part of pieces of DNA. Okay, transposons are actually pieces of DNA, or in other words, we say jumping genes as well. Okay, so uh, transposons have the ability to move. It can move from one cell to another cells by conjugation as well. It can move within a cell as well. Okay, so a piece of DNA with moving with moving capability, or it can move from one cell to another cell. Uh, it is actually transposon. So transposons are pieces of DNA and nothing else. If transposons are pieces of DNA, then in then why they are more important? Why they are much important for a cell and for in or especially in conjugation, why are it important? So if the transposons are pieces of DNA, so it means they have genetic combination, because DNA have genetic combination, because DNA have gene. So it means कि ट्रांसपोसन जो कि पीसीज हैं डीएनए के, उसके ऊपर भी क्या होगा, जो है सीक्वेंस होगा जीन्स का. So if transposons contain sequence of genes, then and it also have the ability to move from one cell to another cell, then we can say कि genetic combination or genes from one bacteria to another bacteria जो ट्रांसफर होंगे, वो ट्रांसपोसन्स के थ्रू भी हो सकते हैं. ठीक है. सो that's why transposons are much important, because they are involved in the transfer of genes from one person to one cell to another cell. Okay, so that's why they are also known as jumping gene. Okay, so if they are jumping genes, then हाउ देखिए, इसके ऊपर जो है अगर हम बात करें कि जंपिंग जीन्स तो हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर सीक्वेंस भी है, तो सीक्वेंस क्या ऐसा होगा कि व्हाई ट्रांसपोसन्स आर मच इम्पोर्टेंट. Gene transposons may have genes for toxins, drug resistance, various metabolic enzymes. Okay, so you can easily identify the importance of transposons, that कि देखिए अगर उसके ऊपर टॉक्सिन प्रोडक्शन के जीन्स हैं, एंड वो इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियल सेल. इट मीन अगर कोई बैक्टीरिया जिसमें टॉक्सिन प्रोड्यूसर जीन्स नहीं थे, लेकिन वो आ जाते हैं फ्रॉम अनदर बैक्टीरिया ड्यू टू ट्रांसपोसन, देन वो बैक्टीरिया भी जिसमें जीन्स नहीं थे, टॉक्सिन प्रोडक्शन थे, वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं. And similar mechanism is involved in the drug resistance. Mostly बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस कैसे अचीव करते हैं? एक बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, तो ट्रांसपोसन्स विद रेजिस्टेंट जीन moves from one bacterial cell to another bacterial cell, जिसमें क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो इंड्यूस करवाते हैं, then bacteria become resistant toward the drugs. Okay. इसी तरह मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी इसमें आ जाते हैं. ठीक है. सो ट्रांसपोसन आर, अगर मैं समराइज करूं तो ट्रांसपोसन जो है ये पीसीज ऑफ डीएनए है, ये कोई खास किस्म के ऑर्गेनेल्स नहीं है. इट कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू, इट हैव द एबिलिटी टू मूव, सो दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज जंपिंग जीन्स.
and if they are genes so and they have the ability to move from one side to another, so that's why फिर क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जीन्स ट्रांसफर हो रही हैं तो अगर एक बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरे में भी वही जीन्स ट्रांसफर कर दिए जाएं तो देन वो बैक्टीरिया भी क्या होगा, will survive in harsh condition as well. Okay, so these are transposons, and another important thing about transposons cannot replicate independently. Okay, now please keep in mind transposons cannot replicate independently. They replicate or they divide with the DNA. ओके, ये जिस डीएनए का पार्ट बनते हैं, जिसके पीसेस होते हैं, जब उससे अटैच हो जाते हैं दोबारा भी या अगर पहले भी अटैच होते हैं तो एंड डीएनए की कॉपीज तैयार होती हैं, तो तब ही ट्रांसपोसन्स तैयार होते हैं. दे हैव नॉट द एबिलिटी, दे हैव नॉट द एंजाइम टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड द सेल. ओके, सो ये बातें जो है चंद बेसिक बातें हैं ट्रांसपोसन्स के लिहाज से. Then another important thing about the transposon sequence. What are the transposons? Pieces of DNA. So if they are pieces of DNA, so we can say these are actually sequence of nucleotides. Genes है ना, तो ये transposons are sequence of nucleotides. So this sequence of nucleotide have 4 domains. Okay. अगर आप अपनी लेविंसन की बुक में भी देखेंगे तो आपको 4 domains मिलेंगी. So each transposon have around 4 domains. First domain is inverted domain. Inverted domains are actually two in number and present at the both ends of the transposon. Because the transposons are pieces of DNA, so it means at both corners, both corners should have the ability to bind with the DNA or ribosome. So if pieces, if transposons have the ability to bind with the DNA, then they have, it means they have sticky ends, and these sticky ends are inverted domains, are known as inverted domains. ये जो पहली domains हैं जो हमारे दोनों ends पर present होती हैं transposons में, जो है एक ही पीस में 4 डोमेन्स हैं, और जो कॉर्नर्स हैं वो जो है बाइंड कर सकते हैं विद एनी डीएनए ऑफ बैक्टीरिया और राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया. ओके, so these domains are inverted domains. Okay, present at both ends. Then another important domain is genes for transposases. ठीक है, ट्रांसपोसन जो है they produce special enzymes. And another domain, second domain, is for the responsible for the production of enzymes known as transposases. ठीक है, so it transpose second domain से transposases निकले हैं. So we have covered 2 domains. Third domain is repressor. What are repressors? Repressors actually regulates the uh, ये regulates करवाते हैं किसके, ये जो enzyme production है. ओके, एंड दी जो प्रोडक्ट है ऑफ फोर्थ डोमेन, अगर मैं इसको और ज्यादा इलैबोरेट करूं, द थर्ड डोमेन इज द जीन फॉर द रिप्रेसर दैट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ both synthesis of both transposases and protein encoded by the fourth domain. Fourth domain is much important because they may have genes for specific function. For example, if any transposon has the gene for the drug resistance, then third domain will control it कि कब जो है इस जीन को एक्सप्रेस होना है और कब एक्सप्रेस नहीं होना. सो रिप्रेसर डोमेन इज अ डोमेन विच कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ द transposases enzyme and the expression of fourth domain, because four domains products of fourth domains may vary in bacteria. Like अगर fourth domain
में जीन्स हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस के हैं किसी स्पेसिफिक ड्रग के अगेंस्ट, देन रिप्रेसर विल कंट्रोल फोर्थ डोमेन. सो इसी तरह से ट्रांसपोजन इज अ सीक्वेंस ऑफ nucleotide, or we can say transposons are the sequence of genes. ठीक है, code for many genes, transposon code for many genes. जो और वो जो जीन्स हैं उनमें भी क्या है, 4 डोमेन, उनकी डिवीजन जो है वो 4 डोमेन्स में की गई हैं. इन्वर्टेड डोमेन, genes for transposases, repressor and fourth domain, which is actually responsible for the production of specific product, जो कि like वन ऑफ देम रेजिस्टेंस जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस जीन, कि अगर फोर्थ डोमेन जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस वाले जीन्स हैं उसके पास, देन they will express and cause the resistance in the bacteria against the drugs, many antibiotics. Okay, so these are actually transposons. So another thing about transposons is that gene transfer from one bacterium to another through conjugation. Transposons may transfer from one person to another. Okay, one person can one bacterium to another bacterium through common mechanism is conjugation. So if they have the ability to move from bacteria to bacteria, so common mechanism जिसे जाते हैं तो वो conjugation होता है, and they are actually known as conjugative transposons because they transfer with conjugation, so they are known as conjugative transposons. और मोस्टली जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जिन ट्रांसपोसन्स में होते हैं वो कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोसन्स होते हैं. ठीक है, then unable to replicate independently. I have told you that no doubt they are part of or pieces of DNA, but they have not the ability to replicate independently. They replicate only in the only with the chromosome of the bacteria or DNA of the bacteria. Okay, or sometimes it replicates with the ribosomes, because when they become the part of ribosome, sorry, plasmid, sorry, I'm saying ribosome, when they become the because if they are pieces of DNA, so they will bind with the plasmid, so they will become the part of plasmid, and plasmid can replicate because उसके अंदर ये ability है कि वो independently replicate करता है. तो when transposons become the parts of plasmid, so transposons will also replicate. ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपोसन अकेले रेप्लिकेट नहीं करेंगे. सो अनएबल टू रेप्लिकेट, ये सारी बातें जो है आपको बता चुका हूं मैं. देन जो है कुछ बातें जो है प्लाज्मिड से हवाले से, दे आर अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोसन्स आर इंसर्शन सीक्वेंस. ठीक है, इंसर्शन सीक्वेंस जो है वो स्पेशल टाइप के हैं ट्रांसपोसन्स हैं. अब ये इंसर्शन सीक्वेंस जो है इसके अंदर जो बेसिस हैं वो एक्चुअली कम होती हैं इन नंबर. नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनका सीक्वेंस जरा कम होता है, एंड दे कैन कॉज, दे हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू कॉज म्यूटेशन इन जिसमें भी ये जिस भी डीएनए या प्लाज्मिड के साथ बाइंड करेंगी तो उनमें म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं. व्हेन दे अटैच विद द व्हेन दे इंटीग्रेट विद द in any plasmid or DNA, then जो इनके सीक्वेंस हैं, जो वो डोमेन्स हैं जो अटैच कर रही हैं, जिनको फर्स्ट डोमेन कहा था, when domains bind with other plasmid, जब वो किसी भी प्लाज्मिड के साथ बाइंड करते हैं ट्रांसपोसन्स, तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं, तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन दे कॉज म्यूटेशन. ओके, सो व्हेन दे कॉज म्यूटेशन, सो म्यूटेशन से क्या होगा, क्या आपको पता है कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा. देन बैक्टीरिया, यू कैन से बैक्टीरिया बिकम मॉडिफाइड. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी ट्रांसपोसन्स के साथ इन्वॉल्व है. तो इंसर्शन सीक्वेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो ये सारी बातें थी फॉर ट्रांसपोसन. इन डायग्राम आपको नजर आएगा कि जो है एक प्लाज्मिड, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से एक पीस, सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कॉपी टीई, ये जो ट्रांसपोसन है ये पिंक कलर में आपको ट्रांसपोसन नजर आ रहा है. सो ये क्रोमोसोम का पार्ट ही, अब ये प्लाज्मिड का भी पार्ट बन सकता है, ये दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का भी पार्ट बन सकता है. ठीक है, सो इसी तरह से ये मूव होता है फ्रॉम एंड मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में कॉन्जुगेशन के बारे में
बताया था, तो वो कॉन्जुगेशन के थ्रू इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, सो ये जो ट्रांसपोसन्स हैं, ट्रांसपोसन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल स्ट्रक्चर्स which are present actually outside of the bacterial cell। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ट्रांसपोसन्स वो नहीं है। ओके, सो वो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल से बाहर हैं, जो साइटोप्लाज्म से बाहर हैं, वो कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर which exist outside the cell of bacteria is capsule। ओके, ये बात याद रखिएगा। इस साल के जो यूएचएस के जो एग्जाम था, फाइनल एग्जाम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि न्यूट्रिशन का था, उसमें जो है कैप्सूल पर नोट आया हुआ था, राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैप्सूल। आई गेस 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, सो आप उसमें उसमें ये सारी बातें लिखनी थी, तो इससे पता चला कि कोई भी ऑर्गेनेली पर आपको नोट आ सकता है। सो कैप्सूल इज प्रेजेंट और एग्जिस्ट आउटसाइड द सेल, outer boundary or cell wall of bacteria। Okay, actually, capsule is a gelatinous layer। ओके, ये कोई खास किस्म का आप कहें कि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई ये नहीं कि कोई एक नई चीज होगी, इट इज एक्चुअली gelatinous layer। and if we focus on the composition of the capsule, then polysaccharides, ओके, मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो कैप्सूल बनाते हैं, बट शुगर इन पॉलीसेकेराइड, यू नो कि पॉलीसेकेराइड्स में शुगर्स होती हैं डिफरेंट। तो इफ लेकिन शुगर्स इन टाइप ऑफ शुगर्स में वेरी विद बैक्टीरिया, कि अगर किसी बैक्टीरिया में जो है पॉलीसेकेराइड जो हैं वो सेम शुगर के नहीं भी होंगे, बट वो कैप्सूल होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल डी ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इन बैसिलस इंथ्राक्स, बैसिलस इंथ्राक्स वो बैक्टीरिया जो इंथ्रासिस कॉज करता है, जो बैसिलस इंथ्राक्स में जो है पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल नहीं होता, उसमें डी ग्लूटामिक एसिड का कैप्सूल होगा। एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इसमें डी ग्लूटामिक एसिड का कैप्सूल होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जिनमें पॉलीसेकेराइड्स हैं उनमें पॉलीसेकेराइड्स की शुगर की टाइप्स वेरी कर सकती हैं। ठीक है, एंड दिस वेरिएशन एक्चुअली जो है हेल्प करती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरोटाइप। So, variation in the sugar components in bacteria or within a species even, कि अगर देखें, अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में क्या है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर हम फोकस करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल में जो शुगर्स हैं उनमें वेरिएशंस हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन in sugar components in polysaccharide of the capsule of Streptococcus pneumoniae, we have 84 different types of Streptococcus pneumoniae। हाँ, है वो Streptococcus pneumoniae, बट उसकी सीरोटाइप्स जो हैं वो 84 डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं। सो यू कैन से कि सीरोटाइप्स जो हैं वो डिफाइन किस बेस पर कर सकते हैं, शुगर कंपोनेंट्स की जो डिफरेंस है उसकी बेस पर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है कैप्सूल की। सो हम जो है अगर स्पेशल जो है, इसी तरह जो है हम स्ट्रेन तैयार करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि इंटरनेशनली स्ट्रेन तैयार किए जाते हैं बैक्टीरिया के, जो है सेव किए जाते हैं, कि उसकी सीरोलॉजी और सीरोटाइपिंग की जाती है कि इस स्ट्रेन में जो है इसके कैप्सूल में ये शुगर सीक्वेंस है। ठीक है, और जो है इस बेस पर हमने इसको अलग से क्लासिफाई किया, तो इसी वजह से हम बता सकते हैं कि वी हैव अराउंड 84 डिफरेंट सीरोटाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae। अनदर थिंग लिमिट्स द फैगो, हाँ, सम इम्पोर्टेंट जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कैप्सूल के लिहाज से। फर्स्ट वन इज लिमिट द फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। Most important point of regarding capsule have the ability to escapes the bacteria from um, phagocytic cell of human body। immune system से escape कर सकता है if bacteria have capsule। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अगर हम ये बात भी देखें कि जो
एक हमारी जनरल और इनेट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें फैगोसिटिक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एंड दे कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी जिस तरह से बैक्टीरिया या वायरस या फंगस आएगी, देन न्यूट्रोफिल जो है वो पहला रिस्पॉन्स होता है बॉडी की तरफ से और हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ से, जो कि उसकी किलिंग करता है। इफ बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द phagocytic cells, then it will तो इसका मतलब है they are more virulent, they can then bacteria can cause more severe disease as well because phagocytosis से escape कर रहा है। and इट वैसे किस तरह से जो है वो जो है कैप्सूल के अंदर ऐसा क्या है कि वो उसे स्कैप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल जो है वो जिलेटिनस लेयर है, ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये। और दूसरा जो है कैप्सूल है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड इन न्यूट्रोफिल्स मोस्टली प्रोटीन्स हैव द नेगेटिव चार्ज। सो जब ये नेगेटिव चार्ज कैप्सूल के ऊपर स्पेशल नेगेटिव चार्ज है, then it repels the negative charge which are present in the neutrophils। so जब ये चार्ज रिपेल करते हैं तो बैक्टीरिया मूव आउटसाइड, बैक्टीरिया जो है वो बाहर आ जाता है सेल से, और उसको फैगोसाइटोसिस कंप्लीट नहीं होती अगर फैगोसाइटोस कर भी लिया गया। so this is an important mechanism। then another important mechanism or function of the capsule is the क्यूलिंग रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा, क्यूलिंग रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि वी मे हैव डिफरेंट शुगर कंपोनेंट्स विद इन अ स्पीशीज इवन, ठीक है। एक ही स्पीशीज में हमारे जो शुगर के कंपोनेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर मैं अब वर्ड यूज करूँ कि सीरोटाइप्स, हम कहेंगे कि एक ही बैक्टीरियल जो स्पीशी है उसमें वी कैन हैव डिफरेंट सीरोटाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अब देखें, अगर जो है सीरोटाइप्स डिफरेंट है और एंटी, इट मीन सीरोटाइप्स डिफरेंट है तो उनके ऊपर एंटीजीन्स, उनके ऊपर शुगर डिफरेंट है। और अगर हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना लें, एंटी सीरम बना लें उन शुगर के अगेंस्ट, स्पेसिफिक शुगर के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि अगर 84 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए हैं, हमने 84 ही एंटी सीरम या एंटीबॉडीज बनाई इन कमर्शियली प्रिपेयर्ड की, और देन हमने देखने के लिए कि ये कोई स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया किस चीज का है, फिर हमने क्या किया, वो एंटी सीरम या वो एंटीबॉडीज जो कि स्पेसिफिक होती हैं, हमने उसको कैप्सूल के साथ रिएक्ट करवा दिया। कैप्सूल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्चुअली हमने उन एंटीबॉडीज को जो है अलाउ कर दिया कि वो रिएक्ट करें विद बैक्टीरिया। व्हेन एंटीबॉडीज या कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगे उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और अगर वो स्पेसिफिक हुई, यानी कि हमने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दी और उसमें वही शुगर हुई जिसके अगेंस्ट वो बनी हुई है, बैक्टीरिया में हुई ऐसी शुगर, देन कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा उसका साइज बढ़ जाता है ड्यू टू रिएक्शन। दिस इज नोन एज कोइलिंग रिएक्शन, ठीक है। एंड कोइलिंग रिएक्शन इज नोन इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरोटाइप्स, very important। then capsular polysaccharides, capsular polysaccharide use antigens for vaccine development। capsule have the ये बात याद रखिएगा कि capsular polysaccharide also act as antigens, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। इफ sugars of polysaccharides can initiate immune response और antibody production in our body, then इसका मतलब है अगर हम इन्हीं कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स को बैक्टीरिया से रिमूव करके हम इंडस्ट्री में ले जाकर इनसे वैक्सीन डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं। सो कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स आर यूज्ड एज एंटीजन फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, ओके। देन कैप्सूल हेल्प इन द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरियम टू ह्यूमन सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसका विरुलेंट फैक्टर भी है कि ये डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडहेरेंस को इंश्योर करता है कि जिस ह्यूमन सेल में इन्फेक्शन करना है उससे बाइंड करे, ठीक है। सो ये है कैप्सूल के बारे में चंद बातें। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम देखते हैं कि फ्लेजेला। फ्लेजेला क्या है, ये भी वो स्ट्रक्चर है जो कि सेल से बाहर है, ठीक है। एंड लोग विप लाइक अपेंडेजेस होते हैं, एक लंबा स्ट्रक्चर है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ये जो है मूव करता है, और इसी की मूवमेंट की वजह से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लेजेला सेल मूव्स टुवर्ड द bacterial cell। Actually bacterial cell move in response to
स्टिमुलस जिसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। और वो इन्वायरमेंटल कोई भी हो सकता है, फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, वो रेडिएशन हो सकते हैं, वो वाटर हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो कार्बन हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन हो सकते हैं, एनीथिंग। सो फ्लैजेला की मूवमेंट से ही बैक्टीरिया मूव करेगा in response to environmental factors or the stimulus. This movement is actually chemotaxis. Okay, so flagella किस तरह से बने होते हैं? फ्लैजेला जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन जो है वो जो है छोटे छोटे जो है कॉम्बिनेशंस जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन छोटी छोटी चेन्स की फॉर्म में जो है आपस में मिली होती हैं, बट ओनली फ्लैजेला में सिर्फ फ्लैजेलिन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और वही चेन जो है आपस में मिलकर फ्लैजेला बनाती हैं, ठीक है। मूवमेंट अकर ड्यू टू प्रोटोन मोटिव फोर्स, ये बात याद रखिएगा। स्पेशल अब मूवमेंट कैसे होती है? जहां से ये जिस जगह से ज्वाइन होते हैं विद बैक्टीरिया, बेस के साथ बैक्टीरिया में ज्वाइन होते हैं, वहां से जो है स्पेशल एटीपी जो है और हाइड्रोजन आयन, ये बात याद रखिए। प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर, और एटीपी साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैजेला मूव करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली प्रोटोन मोटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटोन एंड बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है आपने। देन इन स्पायरोकीट, स्पायरोकीट में क्या होता है? ऐसे लंबे फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या है? फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज एंड उस फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर को एक्सियल फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। कि अगर आप स्पायरोकीट देखें उसमें जो है फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, उसमें जो है उसकी मॉर्फोलॉजी अगर स्पायरोकीट की देखें तो वो स्पाइरल शेप है। तो उनमें उनकी पूरी बॉडी के साथ क्या है? एक एक्सियल फिलामेंट होता है जो मूव करता है, तो बैक्टीरिया या स्पायरोकीट मूव करता है। देन रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पार्टिसिपेट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरिया, फ्लैजेलर एंटीजेंस कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर देखें फ्लैजेला हेल्प्स इन द मूवमेंट, सो मैनी बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एस्क्रिशिया कोलाई इज द कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। ओके, कैसे? E. coli is a normal flora of our intestinal tract, ठीक है। नॉर्मली फीसिस में रिलीज होता है, लेकिन जो है ये एबिलिटी रखता है ये मूवमेंट की एबिलिटी है इसके पास, ठीक है। तो इट कैन मूव फ्रॉम जो है आवर जीआईटी ट्रैक टू यूटीआई ट्रैक। अगर बॉडी से बाहर आएगा तो ये स्किन के साथ मूव कर सकता है, कहाँ पर? यूटीआई ट्रैक में जा सकता है, यूरिनरी ट्रैक में जाकर वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन वी कैन से फ्लैजेला इज इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ मैनी बैक्टीरिया, ठीक है। मूवमेंट बहुत एक बेनिफिशियल चीज है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। नॉट ऑल बैक्टीरिया है फ्लैजेला, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव कैप्सूल, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन जिनके पास है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं डिजीज कॉज में, और विरुलेंट फैक्टर भी हैं। देन फ्लैजेलर एंटीजेंस कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंटली जिस तरह हमने देखा कि कैप्सूल की जो शुगर थी, जो पॉलीसेकेराइड थी, दे कैन एक्ट एज एंटीजन फॉर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इसी तरह फ्लैजेलर एंटीजेंस, फ्लैजेलर जो प्रोटीन्स हैं, दे कैन आल्सो एक्ट एज एंटीजन फॉर ह्यूमन सेल्स। सो इट मीन्स कि हम इसको अगर उन एंटीजेंस को स्पेशली आइडेंटिफाई कर लें तो हम स्ट्रेन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया की टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्लैजेलर एंटीजेंस कैन बी यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज पिल्लाई, ठीक है। पिल्लाई क्या है? पिल्लाई जो है इधर स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस। आपने देखे होंगे ये पूरे सेल की सरफेस के ऊपर जो है बहुत छोटे प्रेजेंट होते हैं। दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला से बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये स्ट्रेट होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है? ये भी पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्टली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं मोस्टली, बट ग्राम पॉजिटिव में भी एक्सेप्शंस हैं, वहाँ भी हो सकते हैं। अटैचमेंट ये किस में इन्वॉल्व है? ये अटैचमेंट में, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म क्या है? कॉन्जुगेशन है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के साथ बाइंडिंग होकर उनका मटेरियल आपस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो अटैचमेंट में इन्वॉल्व है ऑफ ह्यूमन सेल्स की सरफेस के साथ भी अटैच करते हैं, और बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर भी होता है। जो कॉन्जुगेशन है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, वो भी पिल्लाई की मदद से होता है। Another important thing is glycocalyx. This layer is present actually exists outside of the bacterial outer membrane. ये क्या actually slime layer है? ये भी polysaccharide coating होती है जो कि बैक्टीरिया से ही secrete होती है,
ठीक है। अब इसका मेनली पर्पस क्या है, ये है बैक्टीरिया की एडहेरेंस में इन्वॉल्व है। अब ये जो है ज़्यादातर एडहेरेंस किस में करवाते हैं, स्किन के साथ, और जो आर्टिफिशियल जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है प्रोस्थेटिक, जो हमारे पास कैथेटर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो हमारे जो हार्ट के वॉल्स हैं उनके साथ भी बाइंड करने की एबिलिटी, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स के साथ भी, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू स्किन। जब एडहेयर करेगा, अटैचमेंट होगी, तो ये फर्स्ट स्टेप है जो कि उसकी बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोफिल्म। व्हाट इज बायोफिल्म, मैं अपने लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, यहाँ पर टाइम कम है, तो बायोफिल्म एक लंबी बहस है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाइंडिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट टू द सरफेस ऑफ टीथ, ये भी एक एग्जांपल है। उसके ऊपर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो म्यूटेंट्स टीथ के साथ कैसे बाइंड करेंगे, वो ग्लाइकोकैलिक्स से करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, ठीक है। सो ये सारी बातें जो हैं ये याद रखने वाली हैं।